Hello everyone, my name is Torun Chakravorty, a physical education teacher, and you are watching PE Worlds. Once again, I came with another video, and this video is absolutely for ICSE Class 10 Physical Education. As you might be knowing that I am making videos on the descriptive type of questions and answers from the ICSE Class 10 Physical Education. In my previous few videos, I have already discussed some questions and answers from the chapters Growth and Development, Physical Education, Body Types, and in the recent two videos, I have described the questions and answers from the chapter Physical Education. And one more information, let me tell you in this regard that I have published one book for you, and this book is available in Amazon as well as Flipkart. The link of this book is given in the description box. You can check this out. Why I'm saying so, because the questions and answers what I'm discussing in these videos, these all questions and answers have been depicted in this book. I believe that this book will be very helpful for you, and these videos also will be very helpful for you. If you are new to our channel, please subscribe it and follow our channel so that you can get update all the videos what I'm making further. And if you are already there in our channel, you can continue watching the videos what I'm making, and you can share with your friends also so that they can also get benefited, and they also can share with their friends. Anyway, without further ado, let's move forward to the descriptive questions and answer from the chapter Sports Training. Today I'm starting with the questions and answers from sports training. A few questions and answers I'll be discussing today, and the next questions will be discussed in the next videos. So that's what I am asking, that you follow our channel so that you get update of all those videos. And one more thing, that you know that in your question pattern, this 2023 what question pattern what have been given, in this question pattern you know that there are MCQ questions as well as descriptive type of questions. For the MCQ questions, what I will be suggesting you, that I have made a few more videos on in MCQ questions and answers, that is also there in my channel. So that's why I'm suggesting you that go to the description box, one playlist link given ICSE Physical Education. If you click on that link, then it will be finding lots of videos are there on MCQs and descriptive type of questions, so that it will be very useful for you to understand and to revise the questions and answers for your board examination. What Let me tell you one more thing, that the book what I published, it is containing the MCQ questions as well as descriptive type of questions, along with the questions and answers from the games portions. I have included basketball, football, cricket, badminton, and volleyball this time. So that's what I would suggest you, that check out these book what I am published. That will be very helpful for your examination. Anyway, let's move forward to the descriptive type of questions and answers on sports training. Here you can see the first question given: what is meant by sports training? Sports training is a process of preparing sports persons to improve their sporting skill as well as fitness, so that they can perform better in sports competition. Basically, what can be said as sports training, that whenever you are training yourself, that means you will be preparing yourself for the different sports competition where you will be participating. So for that, two things are very important. One is sporting skill as well as fitness. These two areas will be emphasized more, apart from your psychological preparation also. So I'm repeating again, sports training is a process of preparing sports person to improve their sporting skill as well as fitness, so that they can perform better in their sports. ये बोल रहा है कि जो स्पोर्ट्स के लिए जो दो चीज़ अच्छा लगता है कि स्पोर्टिंग स्किल्स, मान लिए कि बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वट एवर द स्पोर्ट्स यू आर प्लेइंग, उसका जो स्किल्स है वो स्किल्स का इम्प्रूव करना है, और फिटनेस लेवल जो जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के लिए, उसका इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. वो करने के लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज देयर. दैट्स व्हाई द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डेफिनेशन हैज बीन गिवन इन दैट वे. ओके, नेक्स्ट, गिव अ डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक डेफिनेशन देने के लिए जब बोलेगा, ये आंसर लिखना पड़ेगा. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ पेडागोजिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स aiming at preparing sports persons for higher performances in sports competition. This definition have been given by हरदयाल सिंह. ये जो डेफिनेशन दिया है मैंने, ये डेफिनेशन हरदयाल सिंह ने दिया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मतलब जो
ट्रेनिंग के लिए जो जो प्रिंसिपल्स होता है उसको बोलना है। क्या क्या प्रिंसिपल होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी। वो जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मैंने, वो प्रिंसिपल्स को हम बाद में डिस्क्राइब भी करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिफिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, principle of overload, principle of adaptation, principle of recovery, principle of reversibility, principle of variance, principle of frequency, principle of continuity, principle of active preparation, principle of periodization, principle of intensity। ओके, इतने सारे प्रिंसिपल्स है। तुम जब प्रिपरेशन के लिए पढ़ोगे ये चीज़, इसको अच्छा ध्यान देके पढ़ना है, क्योंकि हर प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक एक करके वो जो प्रिंसिपल होता है इसको डिस्क्राइब करेंगे हम लोग। जैसा मैंने लिखा है, ये जो आंसर लिखा है मैंने, ये आंसर तुम अच्छे तरीके से लिख पाओगे तो अच्छा मार्क्स तुमको मिल जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला प्रिंसिपल, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सो इंडिविजुअलिटी मतलब क्या है? इंडिविजुअलिटी मतलब जो देखियो, एक स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे प्लेयर आता है ट्रेनिंग के लिए। सो वो बहुत सारे जो बच्चा आता है, वो जो प्लेयर्स आता है, बच्चे लोगों का अलग अलग कैपेबिलिटीज होता है। उसका कोई किसी का फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा होता है, किसी का स्किल सेट अच्छा नहीं होता है। ये सबको इक्वल स्पेस में लाना पड़ेगा, इसलिए इंडिविजुअल ट्रेनिंग सेट स्किल भी सेट करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है इधर? ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, एथलीट्स विल हैव वैरिंग रिस्पॉन्सेस टू गिवन ट्रेनिंग प्लान। समझ लो कि जो ट्रेनिंग प्लान किया गया है, वो ट्रेनिंग जब इम्प्लीमेंट होगा, वो इम्प्लीमेंट होने के बाद अब देखा जाएगा कि जो जो प्लेयर वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आ रहा है उसका ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए जो मतलब ये सबको एक फिटनेस लेवल पे आना है, क्योंकि परफॉर्मेंस उसके बाद ही मिलेगा। इट मीन्स द फोकस शुड बी ऑन द प्रोग्राम फिटिंग द इंडिविजुअल, नॉट द इंडिविजुअल फिटिंग टू द प्रोग्राम। मतलब ये बोल रहा है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बना रहा है कोच और जो ट्रेनर, उसका प्लान ऐसे करना है कि वो जो बंदा ट्रेनिंग करने के लिए आ रहा है उसके ऊपर फिट हो जाए। ये नहीं कि जो प्लान बनाए इसके लिए वो बच्चा को फिट होना है। ठीक है, बिकॉज ट्रेनिंग इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। ट्रेनिंग बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये फैक्टर इफेक्ट करता है। These factors vary across individuals, however, the plan should be adjusted based on athletes' response and feedback. ये लाइन अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जब एक प्लान किया गया है, वो प्लान भी इम्प्लीमेंट भी किया गया है, वो अच्छे तरीके से कोच और जो ट्रेनर को देखना है कि उसका एथलीट्स का जो रिस्पॉन्स हो रहा है, उसका जो फीडबैक आ रहा है, जो अच्छा वो ट्रेनिंग अच्छे तरीके से ले पा रहा है कि नहीं, वो अच्छे तरीके से वो एंजॉय कर पाए कि नहीं, ये चीज़ बहुत सारे अच्छे तरीके से देखना है। उसके ऊपर नेक्स्ट जो ट्रेनिंग प्लान होगा उसको अच्छे तरीके से प्लान डिजाइन करके बनाना है। ठीक है, तो ये आंसर तुम ऐसे लिखोगे तो तुम्हारा मार्क्स 3 से 3 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये चीज़ तुमको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। स्पेसिफिसिटी बोल के क्या बोलना है? स्पेसिफिसिटी मतलब जो जिस स्पोर्ट्स में अच्छा है वो उस स्पोर्ट्स में ही उसका ट्रेनिंग कराना है। और स्पेसिफिक ट्रेनिंग मतलब जो मतलब देखो, जो बास्केटबॉल का जो ट्रेनिंग होता है वो थोड़ा अलग होता है। बैडमिंटन को लेके जो ट्रेनिंग होता है वो भी थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो ये ट्रेनिंग प्लान भी अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा, जो जो स्पोर्ट्स खेलने के लिए आ रहा है उसके लिए सूट हो जाता है। देखा जाता है क्या लिखा है? प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिफिसिटी स्टेट्स दैट द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुड बी रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट टू द स्पोर्ट्स फॉर व्हिच द इंडिविजुअल इज ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। मतलब जो स्पोर्ट्स के लिए वो बंदा ट्रेनिंग करने के लिए आ रहा है उसके लिए ये जो ट्रेनिंग शेड्यूल और जो प्लान बनाया गया है वो शूट हो रहा है कि नहीं, और ये काम कर रहा है कि नहीं, ये देखना है। ये नहीं हो रहा है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। Additionally, training should be progress from general conditioning to specific training for a particular skill
रिक्वायर्ड इन स्पोर्ट एक्टिविटी। ये चीज़ भी अच्छा तरीके से देखना है, जनरल कंडीशनिंग क्या होता है और स्पेसिफिक ट्रेनिंग क्या होता है। जनरल कंडीशनिंग मतलब तुम्हारा जो फिटनेस लेवल का जो एक लेवल होता है, जो फिटनेस लेवल सबको उस लेवल पे आने के बाद ही तुम्हारा स्किल लेवल का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। वो पहले वो जैसा ये जैसा ट्रेनिंग पहले कराना है, क्योंकि उसका फिटनेस लेवल और बॉडी कंडीशनिंग और स्पोर्ट्स के लिए हो जाए। उसके बाद स्पेसिफिक ट्रेनिंग मतलब ये पहले जो बोला बोला मैंने, जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कुछ कुछ ट्रेनिंग होता है। बास्केटबॉल के लिए अच्छा अलग ट्रेनिंग होता है, बैडमिंटन के लिए अलग ट्रेनिंग होता है। ये जो ट्रेनिंग होता है वो अच्छा अच्छा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए वो अलग अलग ट्रेनिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। प्रोग्रेशन मतलब क्या है? प्रगति, मतलब आगे बढ़ना। ठीक है। जो ट्रेनिंग हो रहा है वो उसके लिए इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, इसका प्लानिंग करना पड़ेगा अच्छा तरीके से। प्रोग्रेशन रेफर्स टू द जनरल मोटर स्किल एंड फिटनेस डेवलपमेंट ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। मतलब जो मोटर स्किल होता है, मोटर स्किल मतलब जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग एंड दैट इज ग्रॉस मोटर स्किल एंड द स्पाइन मोटर स्किल एज पर द डिपेंडिंग ऑन द स्पोर्ट्स। ओके। ये और फिटनेस लेवल इज बहुत, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। इसका इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं उसको भी ट्रैक करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल का मतलब वही है कि जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो ट्रेनिंग का आउटपुट कैसा हो रहा है उसको अच्छा तरीके से देखना है। ओके। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन सेज दैट एज योर बॉडी अडेप्ट्स टू योर फिटनेस रूटीन यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ टू कीप सीइंग द प्रोग्रेस। मतलब जो ट्रेनिंग कर रहा है, जो बंदा ट्रेनिंग के लिए आ रहा है उसको भी और जो कोच को भी, जो ट्रेनिंग हो रहा है वो ट्रेनिंग का कोई इफेक्ट हो रहा है कि नहीं उसका अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेनिंग का प्रोग्रेस नहीं होगा तो ये सोचना है कि जो ट्रेनिंग प्लान बनाया जा रहा है वो उसका काम नहीं है। तो इसलिए ये प्रोग्रेस का ट्रैक करना पड़ेगा। दैट चैलेंज कुड बी वैरायटी ऑफ थिंग्स। वो जो चैलेंज हो रहा है, जो आज आज मेरा जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस का नेक्स्ट डे और एक हफ्ता में वो परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है कि नहीं, ये चैलेंज कैसे हो सकता है कि बाय इंक्रीजिंग योर टाइम। मतलब ये देखिए तुम्हारा आपका जो टाइम ट्रेनिंग जो टाइम हो रहा है, लेकिन 1 घंटा के लिए टाइम स्टार्ट किया है, 1 घंटा के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट किया है पहले। तो वो 1 घंटा आप एक 1.5 आवर कर पाता है कि नहीं, आप सडन टाइम के बाद, सडन टाइम मतलब 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता के बाद आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा। तो आपका टाइम एक 2 घंटा 1.5 घंटा ट्रेनिंग कर पाओगे कि नहीं। इंटेंसिटी बढ़ रहा है कि नहीं, जो स्पीड में एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, पहले ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था, वो उसका स्पीड बढ़ गया कि नहीं। ओके। जो वेट तुम पहले लेके काम करते थे वो वेट का इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। जो जितना सेट तुम पहले करते थे वो सेट का इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, रिपीटेशन बढ़ रहा है कि नहीं, और मोर। ये जो चीज़ हम पहले बोला है मैंने, इसके ऊपर बहुत सारे ध्यान देखना पड़ेगा। जो तुम्हारा जो आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट का मेन चीज़ ये चीज़ होता है, इसका ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। यही हो गया आपका प्रोग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होता है। मतलब तुम्हारा सोच में क्या होता है कि जो जो आदमी को जो जितना लोड दिया जा सकता है उसके ज़्यादा लोड देना अच्छा है कि नहीं। किसी को मन में यह आता है कि उसका जितना लोड आता है उसका इतना ही लोड देना है, उसके ऊपर लोड नहीं देना है। बट ये जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो प्रिंसिपल है, ओवरलोड प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है कि जो लेवल में आप है, जिस लोड में तुम काम कर रहे हो अभी, उसके ऊपर थोड़ा बहुत लोड बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अदरवाइज आपका जो इम्प्रूवमेंट जिसमें है उसमें स्टैग्नेंट रह जाएगा। यहाँ ही लिखा है, आप देख लीजिए जरा। इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दिस इज अ फॉरमोस्ट प्रिंसिपल टू मेक एनी इम्प्रूवमेंट इन द डिफरेंट एबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल। ओके। आप जो पहले वाला जो प्रिंसिपल पढ़ा है कि जो उसका प्रोग्रेशन देखना है, प्रोग्रेशन तभी आएगा क्योंकि उसके जो जिसके ऊपर जो लोड जितना वो सहन पाएगा
उसके ऊपर लोड कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है कि नहीं। लोड कॉजेस फैटिग एंड व्हेन लोडिंग एंड्स देन द रिकवरी स्टार्ट्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लोड देना, लोड मतलब जो ट्रेनिंग वॉल्यूम जो जितना उसका ऊपर या बंदा के ऊपर लगाना है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो जब लोडिंग दे रहा है, लोडिंग जब हो रहा है होगा तब बंदा को फैटिग आएगा। किसी टाइम पे टाइम करने के बाद फैटिग आ जाएगा। उसके बाद जब जिसका लोडिंग एंड हो जाएगा, लोडिंग छोड़ देगा, उसके बाद रिकवरी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इफ ट्रेनिंग लोड इज ऑप्टिमल, ओके, मतलब जो बोल रहा हूँ, जो जैसा मैंने बोला है कि जो जितना लोड वो सहन पाएगा, उसके ऊपर थोड़ा बहुत लोड बढ़ाना है, उसका ऑप्टिमल लेवल में बढ़ाना है। क्योंकि बहुत मैंने एक्स्ट्रा ओवरलोड बढ़ा दिया तो कुछ नहीं होगा, वो रिवर्स इफेक्ट हो जाएगा। तो जस्ट लेस देन मैक्सिमम व्हिच इज अननोन। द ट्रेनिंग विल बी मोर फिट आफ्टर रिकवरी देन बिफोर द ट्रेनिंग लोड वाज अप्लाइड। ओके, जितना तुम्हारा परफॉर्मेंस था, वो परफॉर्मेंस का थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जितना फिट तुम थे, उसके उसके वजह से उसके हिसाब से थोड़ा फिटनेस बढ़ जाएगा। ऐसे हिसाब से लोड बढ़ाना है, कुछ करके लोड बढ़ाना है। लोड बढ़ाना, जब लोड बढ़ जाएगा अच्छा तरीके से, तो आपका इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ ओवरलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एडाप्टेशन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये जो प्रिंसिपल है एडाप्टेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये प्रिंसिपल, ये पहला जो प्रिंसिपल बोला है कि ओवरलोड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इसके ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्योंकि जितना लोड आपको ऊपर इम्प्लीमेंट करा जाएगा, वो लोड आपका बॉडी और माइंड में वो एडाप्टेशन हो रहा है कि नहीं, वो भी ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ एडाप्टेशन रेफर्स टू द प्रोग्रेस ऑफ द बॉडीज गेटिंग accustomed to a particular exercise or training program through repeated exposure। ओके, ये देखना पड़ेगा कि वो जो बॉडी और माइंड जिसके लिए बंदा आ रहा है ट्रेनिंग करने के लिए, वो जो लोड उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो उसका जो लोड वो बॉडी और माइंड में अडेप्टेशन हो रहा है कि नहीं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। एज द बॉडी अडेप्ट्स टू द स्ट्रेस, न्यू एक्सरसाइज और ट्रेनिंग प्रोग्राम becomes easier to perform and explains why beginning exercise are often more sore after starting a new routine। मतलब बोल रहा है कि जब बंदा ट्रेनिंग के लिए आ रहा है, उसके ऊपर जो लोड इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, वो उसका जो एडेप्टेशन अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं, वो ट्रैक करने के बाद भी पता चलेगा जो स्ट्रेस उसके ऊपर, जो प्रेशर उसके ऊपर डाला जा रहा है, वो उसका लाभ उठा रहा है कि नहीं। ठीक है, वो इजी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल भी, ये जो प्रिंसिपल पहले बोला था कि ओवरलोड, इसके ऊपर डायरेक्टली रिलेटेड है। क्योंकि जो लोड बंदा के ऊपर, जिस ट्रेनिंग के ऊपर डाल रहे हैं हम लोग, वो वो बंदा वो रिकवरी ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, वो भी ट्रैक करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी, ट्रेनिंग मस्ट गेट एडिक्वेट रेस्ट आफ्टर ट्रेनिंग सेशन टू रिकवर फ्रॉम द फिजिकली मेंटली स्ट्रेस्ड कंडीशन ड्यू टू ट्रेनिंग एक्सपोजर। वो जैसा मैंने बोला था पहले, जो लोड उसके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो लोड अच्छा तरीके से रिकवरी हो रहा है कि नहीं, वो देखना है। और ये पता चलेगा कि जब उसका रेस्टिंग कंडीशन में आएगा, उसका रेस्ट देना पड़ेगा। कोई जो ट्रेनिंग आएगा ट्रेनिंग करने के लिए, वो उसका रेस्ट नहीं दिया जाएगा तो उसका रिकवरी अच्छे तरीके से नहीं होगा। इसलिए बोल रहा है कि उसका रेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, रेस्ट आफ्टर ट्रेनिंग सेशन और टू रिकवर फ्रॉम द फिजिकली मेंटल स्ट्रेस कंडीशन ड्यू टू द ट्रेनिंग एक्सपोजर। जो एक्सपोजर उसके ऊपर जो प्रेशर डाला हुआ मैंने, सो वो प्रेशर अच्छे तरीके से बॉडी में रिकवरी एडजस्ट होगा तब भी जब उसका रेस्ट मिलेगा। थ्रू द रिकवरी प्रोसेस द बॉडी गेट्स रिफ्रेश्ड टू एक्सेप्ट द न्यू वर्कलोड।
जब वो रिकवरी अच्छा तरीके से रिकवरी हो जाएगा, नेक्स्ट वर्कलोड दैट मीन्स आई पहले जो बोला था मैंने, जो उसका जो लोड एक्स्ट्रा लोड उसके ऊपर लगा हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, उसको भी लोड भी थोड़ा 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 दिन बाद उसको भी इम्प्रूव इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे जो बोला गया कि जो बॉडी में रिकवरी फेज आएगा, रिकवरी अच्छे तरीके से नहीं होगा तो वो जो एक्स्ट्रा लोड नेक्स्ट डे जो बढ़ाना होगा वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है, वो रिवर्स इफेक्ट हो सकता है। इसलिए बोलकर ट्रेनिंग के ऊपर बाद ट्रेनिंग को अच्छा तरीके से रेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो लोड उसके ऊपर डाला गया है उसको थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, ठीक है। Through recovery process, the body gets refreshed to accept the new workload in training session. Otherwise, there are a chance of injury and mental exhaustion. जैसे मैंने बोला गया, जो उच्च रिकवरी नहीं अच्छा तरीके से नहीं होने से इसका इंजुरी हो सकता है और मेंटल एग्जॉस्शन भी हो सकता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। रिवर्सिबिलिटी एक अच्छा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल होता है। Reversibility means that it means if training is stopped, gains made by an athlete will begin to deplete at approximately 1/3 of the rate of their acquisition. यह बोला गया कि जो जिसके ऊपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया कि उसका रिवर्सिबिलिटी, वो जो ट्रेनिंग कराया गया है उसके ऊपर उसका कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसका जो ट्रेनिंग आज दिया जा रहा है उसको भी एक दिन बाद और किसी दिन बाद जो ट्रेनिंग प्लान है, इस ट्रेनिंग प्लान के हिसाब से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग कराया गया उसको बंद कर देने के बाद क्या होगा कि जितना परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट हुआ था वो भी धीरे धीरे और दब जाएगा, ठीक है। An athlete needs to maintain strength, conditioning and flexibility throughout the competitive session. ये जो फिटनेस कंपोनेंट बोला गया है, स्ट्रेंथ, कंडीशनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो फिजिकल फिटनेस स्ट्रेंथ जो कंपोनेंट बोला गया, इसको थ्रू आउट द सेशन इसको मेंटेन करना पड़ेगा, बट एट ए लेजर इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम एंड ट्रेनिंग, इसको एक मिनिमम लेवल में इसको मेंटेन करना पड़ेगा। दिस कैन ऑल्सो रेफर टू एज रिटर्निंग एज ट्रेनिंग इज गोइंग इन रिवर्स। मतलब रिट्रेनिंग मतलब जो ट्रेनिंग एक बार कराया गया है उसको मतलब आज समझ लिए कि आज स्पीड ट्रेनिंग हुआ, स्पीड और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हुआ, वो स्पीड और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक दिन और 2 दिन बाद फिर एक बार कराना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उसका जो इम्प्रूवमेंट हुआ गया वो थोड़ा और ग्रेजुअली उसका डिक्रीज हो सकता है। इसलिए एक बोल रहा है कि जो ट्रेनिंग हो रहा है उसको रिवर्सेबल करना पड़ेगा, नहीं तो इसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, ठीक है। This much today up to this question number 10. Next day we'll be discussing the next questions as well. That's why I think this questions and answer the way I'm describing, that will be helpful for you. In this video I started describing in Hindi also. I think you may not be liking the Hindi the way I spoke. I'm trying to improve my Hindi, so that will be improved as well. Anyway, I think these videos will be very very helpful for you, I believe. Please, the way I'm describing, the way I've written the answers of the questions, that should be written in the answer script so that you can get the good marks. And that's what I'm telling you, just collect the book what I'm suggesting repeatedly. That will be very very helpful for your examination. The link of this book is given in the description box, you can get it. Okay, thank you so much.